اور حسد بڑی ظالم شے ہے، حسد بڑی ظالم شے ہے۔ اگر بندہ کر نہ سکے جلتا ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا۔ برابری کسی کو منظور نہیں ہوتی، اوپر سے نہ کہہ سکیں گے اندر سے۔ وہ میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی تو تقریر ٹھیک کی تو سویرے 2-3 جو تھے میری نسل کے بندے کہنے لگے تقریر تو ٹھیک کرتا ہے پر لفظوں کی اونچائی نیچائی ٹھیک نہیں۔ تو ایک بابا بول پڑا، اس نے کہا سمجھ آ گئی ہے، برادری ہوئی نا۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک سے حسد کرنے لگے، پورا 100 کا فقیر آئے، کہنے لگے آج ایسا عبد القادر سے سوال کریں گے، آج اس کو چت کر کے آئیں گے۔ آ بیٹھے اور سوال چھپا بیٹھے، آپ کو کہنے لگے ہم صرف ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا، سرکار فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی ایک آنکھ یہ ہے جو ماتھے پہ ہے یہ، اور ایک ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ ظاہر آنکھ ظاہر تک تکتی ہے، اندر والی اندر تک تکتی ہے۔ اقبال کہتے دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی سوز و سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے، ایک نوجوان آیا، جلدی جلدی آیا، اللہ اکبر کی کھڑا ہو گیا۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے اس نوجوان کو بلایا، فرمایا جلدی میں تجھے وضو یاد ہی نہیں آیا؟ جلدی میں تجھے وضو یاد ہی نہیں آیا، اور تیری بے وضوگی نے ہمیں بھی بھلایا۔ یہ جو امام کو اکثر متشابہ لگتے ہیں، ساری امام کی غلطیاں نہیں ہوتی، پیچھے بھی جو ہوتے ہیں ان کا بھی کرم ہوتا، نہیں سمجھے؟ اس لیے کرم فرمایا کرے، ذرا سیدھے ہو کے آیا کرے۔ انگلیاں تو ہماری طرف اٹھتی ہیں، جی امام صاحب بھول گئے تو تسی بھی تھے رول گئے۔ تو آپ نے فرمایا اوے بھائی تو جلدی میں آیا، تجھے وضو؟ پریشان ہوا، کہنے لگے سرکار شکر ہے آپ نے یاد دلایا، مجھے یاد آیا، پر آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا کچھ چوکھا بھار جو مجھ پہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ آج کوئی مقتدی۔ ظاہر ہے جس وقت انجن کو ڈبل بھار اٹھانا پڑتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ٹیوب لیس ٹائر ہو گیا ہے فیر۔ انگلیاں اماموں پہ اٹھتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ غلاموں نے بھی کوئی کرم فرما رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا پیارے وضو تو یہ ہے نظر۔ آپ کا بخار ہوا، بیمار ہوئے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے بابا نہ جاؤ۔ آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے ابھی عبد القادر رہنا ہے۔ اس نے کہا بابا موت کا بھی علم ہوتا ہے۔ فرمایا ابھی یحییٰ نے آنا ہے، ایک بیٹا اللہ پاک نے مجھے دینا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ آئے گا پھر عبد القادر جائے گا۔ نظر جن کی وہاں تک ہوتی ہے پھر نظر سارے جہاں تک۔ یہ الگ ہے کہ چپ رہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، ورنہ کہنے پہ آ جائیں تو کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی۔ فرمایا ہماری چپ کو بے علمی نہ کہا کرو، بے علم نہیں، چپ رہتے ہیں۔ اللہ فرمایا میری نظر کو جانتے ہو؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، میں تمام اللہ کی روئے زمین کے اوپر جتنے شہر ہیں انہیں ایسے تکتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو تکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟
जब खिदमत में उनकी थे अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। गौसे बाप की नजर भी कमाल है, इल्म भी कमाल है और ख्याल भी। बैठ के तकरीर फरमाना और आवाज कहां तक जानी। और एक दिन तकरीर फरमाते फरमाते जिस दिन बिइज़्निल्लाह आपने ऐलान किया कि मेरा ये कदम औलिया की गर्दन पर है, तो वहां जितने उलमा मौजूद थे उन्होंने अपनी दस्तारें उतार के कदमों में डाल दी। आपने एक एक दस्तार उठा के सबको पकड़ाई, बीच में से एक खातून की चादर भी निकल आई। उन्होंने कहा सरकार ये है बीबी तो कोई मौजूद नहीं है, चादर कहां से आई। अब बात खोलनी पड़ी। आपने फरमाया ईरान के शहर इस्फहान में हमारी एक मोमिना बहन मेरा हर खिताब सुनती है। कौन सा इंटरनेट पर लगा होता, कौन सी स्क्रीन लगी होती है, ये तेरी स्क्रीन शैतान ने बनाई है और वो स्क्रीन जो रब ने बनाई है उसकी पहुंच कहां तक है। फरमाया उसने भी जोश में आके इन्होंने दस्तार डाली, उसने दुपट्टा रख दिया है और फिर फरमाया वो दुपट्टा वहां से आ सकता है तो यहां से भी जा सकता है। ऐसे करके जो दस्ते तसर्रुफ दराज फरमाया, जहां से आया वहीं पहुंचाया। ये गौसुल वरा है। और ये जो हम 11वीं शरीफ मनाते हैं ये महज ईसाले सवाब है और ईसाले सवाब ये औलिया की निशानी है। हजरत मजहर जाने जाना, आज वैसे खूबसूरत महफिल सजी कि हजरत साहब का ताल्लुक नक्शबंदी सिलसिले से है, मुजद्दिदी सिलसिले से है और इल्म की अमल की दुनिया में भी अल्लाह ने आपको राज अता फरमाया है। और हजरत मजहर जिनका मैंने नाम लिया है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के वो अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग थे जिनके नाम पे कुरान की अजीम तफसीर मजहरी। वो बुजुर्ग कितना बुलंद होगा कि जिसके नाम पे कुरान की तफसीर क़यामत तक तफसीर मजहरी। हजरत मजहर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे प्यार था गौसे पाक से और मैंने एक रात ख्वाब देखा, ख्वाब लाजवाब देखा। ख्वाब में देखा कि जितने रूए जमीन के औलिया है कतार अंदर कतार एक तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने नबियों को देखा कतार अंदर कतार जा रहे हैं। मैं हैरान हुआ, खुशगवार हैरत थी कि मजहर आज इतने बुजुर्गों की दीद हो गई, हमारी तो ईद ही ईद हो गई। आज भी हम सब की ईद है गुलाम फरीदा लख ईद मने सा जड़ा बिछड़े मिल से नबाही। ये खाली जलसा नहीं, इतने सारे बुजुर्गों की एक दूसरे को जो दीद हो रही है ये अहले ईमान की ईद हो रही है। और ईद के बाद में जाना होता है, पहले खाना भी। और वो वाला पिछले वाला ऐलान वापस है, अब बाद में जाना है, पहले खाना है। लेकिन खाने से पहले मैंने आपको कुछ सुनाना है। वो अजीम बुजुर्ग कहते रात हुई, इतने सारे बुजुर्ग देखे और आखिर में जो मेहमानाने खुसूसी थे उन पे जो नजर पड़ी, 3 बुजुर्ग मैंने देखे। 3 बुजुर्ग देखे, एक बिल्कुल दाएं, एक बिल्कुल बाएं, एक बीच में है। जो दाएं वाला वो आफताब है, निगाह उठती है पलटती नहीं, और अगर चेहरे की तरफ डालो तो जाती नहीं, हया बन के पलट आती है। और कहा एक बाएं तरफ बुजुर्ग था, माहताब जैसा चेहरा, जलालत माब। और कहते जो उन दोनों के बीच में थे, दाएं वाले ने अपने बाएं हाथ से बीच वाले का दाएं हाथ पकड़ रखा और बिल्कुल बाएं वाले ने अपने दाएं हाथ से उस बीच वाले का
बायां हाथ पकड़ रखा है। अब दाएं वाला तो आफताब है, आप अपना जवाब है। बाएं वाला मिसले माहताब है और बीच वाला उसके बाल खुले हुए, रंग उड़ा हुआ, दाढ़ी मुबारक में गुबार है, कपड़े उसके फटे हुए, जूता चटक चटक कर रहा है, आंखें फटी फटी है। मैं हैरान था, दाएं वाला ऐसा, बाएं वाला ऐसा और बीच वाला कैसा। जुल्फों पे गुबार, दाढ़ी पे गुबार, चेहरे पे गुबार, आंखें वहशत ज़दा फटी हुई, कपड़े दोनों चादरें कटी हुई, पांव में जूता चटक चटक कर रहा है। मैंने कहा ये दाएं बाएं वाले इतने अमीर हैं, बीच वाले कितने फकीर हैं। मैं हैरान था, ये तीनों है कौन। मैं दौड़ा, ख्वाब में एक अल्लाह का बंदा पाया, दामन पकड़ा। मैंने कहा जाने वाले करम कमा, मुश्किल मेरी आसान फरमा। ये जो तीन बुजुर्ग हैं इनका तारुफ करवा। जिससे मैंने पूछा वो हंस पड़ा। उसने कहा वाह मजहर, इतना बड़ा बंदा हो के तू इनको न पहचान सका। और जो दाएं वाली हस्ती है ये खुद तेरा नबी है, और बिल्कुल जो बाएं है ये मौला अली है। और आंखें फटी फटी, सर पे दाढ़ी पे गुबार, कपड़े जिसके फटे फटे हैं, जिनको दोनों ने थाम रखा है, इसका नाम उवैसे करनी है, इसका नाम उवैसे करनी है। और प्यारो ये तो बताओ, वलियों की कतार, नबियों की कतार, और खुद नबियों के सरदार उवैसे करनी भी साथ। पूछना ये चाहता हूं कि आज सब किधर जा रहे हैं। उस बुजुर्ग ने बताया मजहर तुझे पता नहीं, आज गौसे आदम का और सहाय सारे उधर जा रहे हैं। नाराए रिसाला, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी। सच कहा इल्म फन के शहंशाह ने, नबी के दर के गदा ने, हजरत अहमद रजा ने। नबवी मी अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। और तू है नौशाह, बराती है ये सारा गुलजार। आला हजरत कहते हैं हुजूर गौसे पाक आप दूल्हा है और सारा बाग चमन तेरा बराती है। तू है नौशाह और बराती है ये सारा गुलजार, और लाई है फसल समन गूंद के सेहरा तेरा। और कहते मजराए चिश्तो बुखारा, इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और वरफाना का जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा और बोल है बाला तेरा। और गौसे पाक को आखिर में उन्होंने ये कहा या रसूल अल्लाह, क़यामत का जब दिन आएगा और फिर अहमद रजा जब जाएगा, जब कोई सहारा नजर नहीं आएगा तो फिर किधर जाएंगे। कहा तेरी दरबार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात गिरामी, आज मैं फिर एक मर्तबा क़िबला हज़रत साहब आपको खुश आमदेद भी कहता हूँ। और ये खुशी का बायस कि हज़रत साहब जिन बुज़ुर्गों का मैंने जिक्र किया है, इस दौर में उनकी ये निशानी है। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम रखे, सलामत रखे, ता क़यामत रखे। और जामिया शमसिया क़मरुल उलूम को अल्लाह ताला बरकतें और क़िबला क़ारी साहब की कोशिशों को, साई को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।